It's 16 hours. Good evening, sir. Good evening, Aryan. So, any any benefit of writing the post? Yes, sir. Uh, Actually, I get a call from Avinav sir from Gen X, Okay. and उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं अरे कार्ड। वाह, अरे वाह, वाह, अरे वाह। देखो भाई, Aryan, Congratulations, Aryan. when you will become the CEO, please give me some post in your company. Do not forget. यस नहीं सर, Congratulations. थैंक यू सर। मतलब उनका कहना कि अगर हम जेन एक्स ही कार्ड बेचते हैं तो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, मीन्स मेरे मार्केटिंग अच्छी है, तो Okay. मैं आपके कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेके सेल करूंगा, मुझे नो प्रॉब्लम सर। Excellent, excellent. अब बहुत जल्दी ना you will decide the core team. You will be CEO of course. तो एक एक जरा सा Yes. ढूंढो भाई, पोस्ट दो हम लोग को भी, एक हम लोग को भी कार्ड बना के दो। सर आपका तो सब, आपके बिना कुछ है ही नहीं। Great, great. I'm so happy. I'm so happy. I think I posted that one yesterday in the night, I believe. Something 1 o'clock, something Yes, like sir. that. Let me just check. कितने बजे पोस्ट किया मैंने उसको? Sir, put the link also in the post. So अगर किसी को लेना हो तो लिंक पर चले जाएं। मतलब I कॉल think बहुत लोग नहीं कर पाए। you have shared it again. Yes sir. You have shared with the link and all. So 14 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया है. It means कितने बजे हुआ? 2 बजे रात के. जी जी। है ना? Night 2 o'clock I posted. And it's going good. It's going good. Great. I'm so happy. उनके और भी कुछ आइडियाज थे जो मतलब मीटिंग से ही होंगे। Okay. लाइक कोई इन्वेस्टर आ जाए, मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ इस टाइप से, तो उससे ही बात करनी है कि अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो क्या टर्म्स होते हैं, Okay. वो मेरे को नहीं पता है। Fantastic. So I think Abhinav ji is a very good person. And जिनके यहाँ हम लोगों ने Yes, मीटिंग sir. किया था that day, last Sunday. Yes sir. Okay. Yes, He is the good person. He is working in ACC Cement, right? Yes. So I think you tell him that whenever he is back in Muzaffarpur, go for a meeting. Yes sir. Great. Fantastic. Now I wish you should crack your HM exam and then go to your Yes, sir. college and tell them that I'm already a CEO of this company. Great. Yes sir. That's great. Sir, like CEO, my brand is registered for Udyam registration, MSME. MSME already registered. Yes sir. I mean Okay. तो सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन में आ जाए। आ जाएगा. Excellent. Excellent. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. एंड एक बार जब वेबसाइट और ऐप बन जाए तो स्टार्टअप इंडिया के तहत भी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। And you never know that अगर उनको अच्छा लगेगा Yes, sir. concept, तो you will get incentive and aid from Government of India also. Yes sir. Fantastic. So एक cafe coffee day was having a punchline. एक था कि क्या था, an idea can happen on a cup of coffee, something like that. Yes sir. An idea can originate or something. एक ऐसा पंचलाइन था उनका कि
एक कॉफी पीते हुए भी कोई बहुत ही अच्छा आइडिया आ सकता है. So I think similarly this is going to be a part of that. हमने कुछ और सोचा था and just because of your hard work or nothing else, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं but because of no hard work it goes in vain. Fine. So good evening and welcome everyone to this body mind soul session, and I Good believe evening, sir. today is 14th session. Okay, and I think presence also is good. Ishan, Chef Shankar, or CEO Shankar now, Shivani and Shagufa and Anmol and Sana. Fantastic. So today we are talking about, we are going to talk about persistence, right? So patience, persistence and perseverance. ये तीन शब्द हैं जो कि आपस में काफी मिलते जुलते हैं. And fortunately, unfortunately, my name also is Patience. So I will discuss about what is the importance of my name in this session. So stay tuned. I think we are going to enjoy because I will not give any gyan. I will tell you a story. Okay, so I will tell you one more thing, that these all slides I developed under the topic or under the theme campus to corporate. यानी कि आप लोग किसी न किसी कैंपस में हैं, you are in a college, you all are going to pursue graduation, and from here you will go to corporate. And we have to always believe in these three words: attitude, skill, and knowledge. Right attitude, right knowledge, right skill, and right skill, you are going to be at the right place. Fine. What else? So we will discuss the power of persistence, a love story. तो आज जो है आप लोग थोड़ा सा डोंट फील ऑकवर्ड. अरे धीरज सर एक लव स्टोरी बताने जा रहे हैं. यस, आई एम गोइंग टू टेल यू अ लव स्टोरी. एंड ये लव स्टोरी अमेरिका के एक राष्ट्रपति की है, which you will come to know in my coming slides. So persistence of a dream. किसी व्यक्ति ने एक सपना देखा और उस ड्रीम को बड़े ही उसने धैर्य के साथ जिया, उसको फॉलो किया उसने. देखते हैं. So that person was born in 1884. उसका पिक्चर भी है और बगल में टेक्स्ट भी है. You can understand. He was born in 1884 in Jackson County, Missouri. यूएस के एक जगह है मिसौरी, वहां के जैक्सन काउंटी नामक जगह पे उसका जन्म हुआ था. कब हुआ जन्म? 1884. अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ फिर. He was the second son of Mattie and John. मैटी उसकी माँ का नाम है, जॉन उसके फादर का नाम है. He was a second son. When he was 6, he entered school. 6 साल की उम्र में वो स्कूल गया. And met his sweetheart and fell in love. इतने छोटे से उम्र में he met a girl in the school, और उसको उस गर्ल से प्यार हो गया. प्यार मतलब हम बहुत बार ना प्यार का लव सुन करके हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं. सो प्यार बहुत तरह का होता है. एक माँ का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार, सब प्यार है. मतलब कोई एक लड़की थी जो कि उसको उस उम्र में अच्छी लगी एंड वो उसको पसंद करने लगा. एंड ऑल थ्रू स्कूल ही वाज इन लव विद दिस लिटिल गर्ल. पूरे स्कूल टाइम में उसको लड़की काफी अच्छी लगी, उसको उसने बहुत पसंद किया. इन हाई स्कूल हिज बिगेस्ट थ्रिल वाज टू कैरी हर बुक्स होम आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद जब वो लोग हाई स्कूल में आए तो उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा जो थ्रिल था वो था कि छुट्टियों के समय में उस लड़की के किताबों को स्कूल से घर तक लेकर के जाना. दिन क्या होता है, आफ्टर हाई स्कूल दे वेंट देयर सेपरेट वेज. हाई स्कूल के बाद वो लोग अलग अलग चले गए. देन व्हाट हैपेंड, इन 1910 दे गॉट रीअक्वेंटेड. ही वाज अ फार्मर. 1910 का मतलब क्या हो गया, 84 का जन्म है उसका, यानी कि 16-10-26 साल की उम्र में वो वापस मिले. उस समय उसने ऑलरेडी फार्मिंग ज्वाइन कर लिया था, वो एक किसान बन चुका था. एंड शी स्टिल लिव्ड एट होम विथ हर मदर. और वो जो लड़की थी वो अपनी माँ के साथ रहती थी.
ये सारी फोटोज एक्चुअल्स हैं. During the week, he would write her letters. एक मिनट, ये कहानी है. हाँ, okay. He would write her letters and on the weekends he would visit her. मतलब वो हफ्ते में उसको चिट्ठियां लिखता था और वीकेंड्स में उससे मिलने जाया करता था. आगे क्या होता है? After a year, he finally found the courage to ask her to marry him. एक साल और उसने वेट करने के बाद फाइनली उसने बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और देखते जवाब क्या आता है. Then he अच्छा and he did it by letter. चिट्ठी लिख करके उसने पूछा उससे. Then he waited on pins and needles for her answer. ये एक फ्रेज है, pins and needles, मतलब धड़कते दिल के साथ, बहुत ही बेचैनी में, बहुत ही आशंकित होकर के उसने उसके जवाब का इंतजार किया. एंड जवाब क्या आया? Oh, when her answer came, it was no. उस लड़की ने उसको मना कर दिया. मना करने के बाद उसने वापस लिखा और कहा कि तुमने बहुत ही अच्छे ढंग से मना किया है, तो मैं काम करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश आवर फ्रेंडशिप. मैं अभी भी तुम्हारे साथ कम से कम दोस्ती मेंटेन करूंगा. एंड ही डिड इट फॉर 2 more years. और 2 साल और वो इसी तरह उसके साथ दोस्ती में रहा. फाइनली शी सेड, उसके बाद उसने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर मैं शादी करूंगी तो वो तुम ही होगे, इट विल बी यू ओनली. नाउ देयर वाज वन थिंग होल्डिंग हर बैक फ्रॉम द फाइनल स्टेप ऑफ मैरिज, हर मदर. लेकिन उसकी माँ अभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी. उसकी माँ का ये एक्सपेक्टेशन था, उसकी इच्छा थी कि मेरी बेटी मेरे साथ, मेरे जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे साथ रहे और मेरी देखभाल करे. और उसके बाद वापस भाग्य ने एक चेंज लाया और जो अमेरिका यूएस था वो वर्ल्ड वॉर 1 में चला गया. आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 से मुझे लगता है कि 1914 1915 के आसपास शायद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है. और जब उस यंग मैन ने सुना उस वॉर के बारे में, ही वॉलंटियर टू गो फाइट. उसने लड़ाई पे जाने का अपना मन बना लिया. और जब उसकी फियांसे, उसी स्कूल वाली लड़की ने सुना कि नाउ ही इज गोइंग टू वॉर, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड मैरी हिम. वो बोली कि नहीं, हम शादी कर लेते हैं, तुम अब जाने वाले हो वॉर पे, हम शादी कर लेते हैं. लेकिन उसने कहा यस. जो उस लड़के ने सपना देखा था बचपन से, वो सपना आखिर सच हो गया था. लेकिन उस लड़के ने बोल दिया नो. उसने कहा कि मैं जा रहा हूं लड़ाई पे, पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा या मर जाऊंगा. अगर मैं जिंदा वापस आया, then I am going to marry you. So wait for me to come back. And finally क्या हुआ? वो गया, वो बिल्कुल हेल्दी वापस आ गया और उसके बाद से उन्होंने शादी कर ली. तो उसने वो फ्रांस गया और फ्रांस पे उसने 2 साल वहां पर लड़ाई की. लौट के आने के 2 महीने बाद उसने शादी कर ली. अब ये बता रहा है कि he was 6 years old when he fell in love. पहली बार जब उसने उस लड़की को देखा था और वो उसको पसंद आई थी, he was only 6 years old, and when he got married he was 35. 29 years he waited. And this story talk about persistence. इस स्टोरी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप सब लोग बोले कि नहीं, अब मैं भी किसी को बनाएंगे अपना fiancé and all, and I will wait for 10 years to get married. ये बिल्कुल भी नहीं है. बात इसकी है कि जो भी हमने एक लक्ष्य अपने मन में बिठाया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कितने साल इंतजार कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज persistence. So the difference between the winners and the losers is in this one word, persistence. कौन अपने ड्रीम को एक लंबे समय तक चेज कर सकता है, फॉलो कर सकता है. फाइन. आर्यन, हमने कब शुरू किया था ये वाला काम? रेमिज इंडिया मंथ? Sir, I think 7-8 March. Okay, and now it is almost 40 days. Yes, sir. Okay.
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 40 दिन के पहले जब हमने पहली बार ये डिस्कस किया होगा तो वी नेवर न्यू कि ये इतना बड़ा हो जाएगा या लोग इसको इतना पसंद करेंगे, बट परसिस्टेंस के कारण वो अभी तक जो है वो टिका हुआ है. इट्स गोइंग. सो आर यू विलिंग टू वर्क 29 years टू अचीव योर ड्रीम? ये सवाल हम सब के लिए है कि जो भी हमारे मन में पैशन है, ड्रीम है, हमारा जो एम है, एम्बिशन है, क्या उसको हासिल करने के लिए इतने लंबे समय तक फाइट करने का, वेट करने का हमारे अंदर क्षमता है या नहीं है? और ये आता है अंत में फाइनली द आंसर. हिज नेम वाज हैरी एस ट्रूमैन, द 33rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, एंड उसकी वाइफ का नाम था बेस, एंड दे वर मैरिड फॉर मोर देन 50 years. 35 years में शादी की और 85 में उसका डेथ हुआ होगा, जहां तक मुझे लगता है इस बात से. 50 साल दोनों साथ रहे, लेकिन 50 साल साथ में रहने से पहले 29 years उसने चुपचाप से उसका इंतजार किया, उसने हिम्मत नहीं हारी. फाइन. तो ये कहानी है कि अगर आपके पास कोई बिग होप्स एंड ड्रीम्स है, देन परसिस्टेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड. आपको उसको बहुत ही आराम से फॉलो करना पड़ेगा, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के. कभी भी आपको लाइफ में क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा. एंड इफ यू आर गेटिंग सम क्विक रिजल्ट, ऑलवेज थिंक इट इज गोइंग टू बी टेम्पररी. अगर आपको क्विक रिजल्ट मिल रहा है वो टेम्पररी है. ओके. एंड दिस स्टोरी आई थिंक वी ऑल नो. थॉमस अल्वा एडिसन, बिफोर इन्वेंटिंग लाइट बल्ब, he failed over 10,000 times. अगर उसने 100वें अटेम्प्ट के बाद बोला होता कि नहीं भैया मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो, तो शायद हम बल्ब का आविष्कार जल्दी नहीं हुआ होता और हम शायद पता नहीं हम अंधेरे में रह रहे होते. वी डोंट नो. ओके. सो अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा. सो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी अगर डिजायर करें उसको हासिल करना पॉसिबल है. इट डिपेंड्स कि आप कितने पेशेंस के साथ उसको चेज करते हैं. राइट. एंड आई विल बी सो हैप्पी इफ यू ऑल विल राइट अबाउट योर पैशन, एंड यू विल आल्सो राइट दैट हाउ पैशनेट यू आर, हाउ परसिस्टेंट यू आर टू चेज दैट ड्रीम और पैशन, व्हाटएवर यू हैव. राइट. सो हम पैशनेट रहें, हम परसिस्टेंट रहें, हम एंथुसियास्टिक रहें. राइट. तभी जाकर के हम अपने लाइफ में जो हमें चाहिए था वो हम हासिल कर सकते हैं. सो एनीबडी हु कैन टेल मी, दशरथ मांझी ने, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, उन्होंने कितने साल के स्ट्रगल के बाद वो रास्ता बनाया था? एनीबडी हु रिमेंबर्स? एनीवन? I think 40, approx 40, ठीक है. 35 years. 35 years is शिव शंकर. Anybody else? शिवानी अनम्यूट करो अपने को. Unmute and speak. क्या बोल रही हो? How many years? I think 30-35. 30-35. और कोई है क्या? Sir, I think 30, sir. 30. जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है 30. जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है कुछ 20-25 साल का वो समय था, शायद 22 था या 23 था ऐसा. तो लोगों ने पागल बोला, लोगों ने बोला कि भाई ये आदमी इसका दिमाग खराब हो गया है. बट आज की डेट में दशरथ मांझी इज पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक. वो हमारे टेक्स्ट बुक में आ गए हैं बिकॉज ऑफ हिज परसिस्टेंट. कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, नो IAS, नो BPSC, नो इंजीनियरिंग, नो मेडिकल, बट नाउ ही इज एन आइकॉन. तो अब आपको कभी नहीं मालूम कि आपका कौन सा आइडिया, कौन सा आपका परसिस्टेंस एंड आपका पेशेंस आपको कहां तक पहुंचा करके छोड़ेगा. राइट. सो परसिवरेंस इतना इंपॉर्टेंट है. सो अब ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं. यू शो परसिवरेंस व्हेन यू गिव अप योर टीवी टाइम टू स्पेंड आवर्स स्टडीइंग. जब टीवी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल आ रहा हो आपका मनपसंद, आपने उसको छोड़ दिया पढ़ने के लिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए. राइट. कोई नया खेल जो बहुत डिफिकल्ट है बट आप उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं. राइट. किसी के पास याद करने का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, बट वो किसी के डिस्करेज करने के बाद भी पढ़ता रहता है.
अगर थोड़ा घर का माहौल भी इतना बढ़िया नहीं है, बट उसके बाद भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. एंड हियर आई रिमेंबर वन नेम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. अगर आपने नाम सुना होगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड घर में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं था. नो कैंडल, नो लैम्प, नथिंग. सो ही यूज्ड टू स्टडी इन द स्ट्रीट लाइट. सड़क पे जाकर के बैठ करके वो पढ़ाई किया करते थे. फाइन. अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो हम उसको वापस कैच करते हैं, राइट? सो these all are examples of perseverance. आप पढ़ सकते हैं. Save money and make sacrifices to buy something. Spend hours practicing on your music. Study and work hard to raise your grade. ये सारे एग्जाम्पल हैं. यानी कि जो मैंने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं. तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जो है वो मिलेगी ही मिलेगी. इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या ठाना है और आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं. फाइन. मैं अब थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज बहुत सा. हाँ, नाउ विल गो फॉर द एग्जांपल्स. बीथोवन, जो लोग यहाँ पर म्यूजिक से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा. बीथोवन वाज अ कंपोजर एंड ही वाज डेफ. वो बहरा था एंड ही वाज अ कंपोजर. Ray Charles was a musician and he was blind. Thomas Edison was having a learning problem. Albert Einstein, learning disability. Steve Wonder, musician, was blind. So इतने सारे challenges के बाद, handicap होने के बावजूद उन्होंने अपने aim को नहीं छोड़ा. Fine. ये सारे के सारे ये सब हैं. So always finish what you start. जो आपने ठाना है उसको आप छोड़ो मत, उस पे आप लगे रहो, तो देर सवेर आपको वो मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप छोड़ करके हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है. राइट? अब ये देखो, ये मैंने बनाया था कि भाई अगर आपके पास परसिवरेंस है तो कहीं ना कहीं कुछ आप कम्युनिटी सर्विस पे भी आ सकते हैं. यानी कि अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं. फाइन. तो क्या कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा. हाउ आई कैन हेल्प सोसाइटी टू ग्रो, ये भी एक परसिवरेंस का एग्जाम्पल है. ओके. ये क्या बोलता है कि अपने प्रॉब्लम से भाग जाना जो है वो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है. अपने को ब्लेम करना, किसी और को ब्लेम करना, भाग्य को ब्लेम करना, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू कीप ऑन फोकस्ड एंड यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. फाइन. सो फेस एंड एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ. जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए. राइट? अपने फीलिंग्स के बारे में लिखिए. अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए, उसको अच्छा कीजिए, अपने आप की देखभाल कीजिए एंड फाइनली अपने एक्सपीरियंस सीख करके आप आगे बढ़ते रहिए. A man who is master of patience is the master of everything else. ये एक बड़ा अच्छा कोटेशन है. So before I go further, I want to hear from all of you one by one कि आपके लाइफ का ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसको आप चेज कर रहे हैं. So I will start with who is first. ईशान, आप क्या ड्रीम चेज कर रहे हैं? UPSC का examination. So Ishan is gunning for UPSC. He wants to be a civil servant. Shagufa, what you are gunning for? Yes, sir. Preparing banking. So she wants to be a bank officer. Okay. Shivani. Yes. Practice in dietitian. So we have a dietitian in our group. Okay. Shiv Shankar. सर कमर्शियल पायलट. Okay. कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं. अनमोल. Sir, actually, I want real happiness and satisfaction with my work only. So basically, actually, किसी भी वर्क का तो पर्पस वही है. We want to Yes, be happy and we want to make others happy. That's it. हम कुछ भी Yes, बने, sir, that's लेकिन it. उसके लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए. Yes, sir. Yes. तो क्या है जरिया, क्या है आपका? Sir, right now, dietitian. So right now dietitian. Okay, very good. Yes. Sana, you are the last one. Tell me, what is your plan? Yes, sir. Yes, sir. Preparing banking, sir.
Okay, so we have 2 bankers, we have 2 dietitian, and we have 1 pilot and 1 UPSC aspirant. Fine. And I hope आप सबके अंदर पेशेंस, परसिस्टेंस बिल्कुल कूट कर भरा हो और आप अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहे हो बढ़िया अच्छे ढंग से, राइट? अच्छा, ये एक अच्छा कोटेशन है जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. पेशेंस इज वेटिंग बट नॉट पैसिवली वेटिंग, दैट इज लेजीनेस. लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा लक्ष्य अभी दूर है, मैं वेट कर रहा हूं. तो वेट तो करना है लेकिन आराम नहीं करना है. हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कुछ ना कुछ कदम बढ़ाते रहना है. यानी कि एवरी डे इन द नाइट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ दैट व्हाट आई हैव डन टुडे टुवर्ड्स माय गोल. मैंने आज पूरे दिन में अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम किया. 24 घंटे में जितना काम मैंने किया, क्या वो काफी था या मैंने बहुत सा समय बर्बाद किया? दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ. हमसे कोई और पूछने वाला नहीं है, राइट? ओके, और क्या है? फाइन, इसको हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज आई हैव सो मेनी स्लाइड्स. मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा which you can go through. ओके. ये है, अगर हम इम्पेशेंट होते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं. हाउ वी फील व्हेन वी आर इम्पेशेंट. ये सारे के सारे हमारे अंदर जो है, इरिटेशन, वी फील इग्नोर्ड, वी फील एंग्शियस, टेंस, नर्वसनेस, burned out, frustration, I forgot something, misdirected, misunderstood, overstressed. ये सारे के सारे हमारे अंदर चीजें आनी शुरू हो जाती हैं. अगर ये चीजें आपके अंदर में आ रही हैं, इसका मतलब आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य आपने सही चूज नहीं किया है या आप उसके प्रति डिवोटेड नहीं हैं. ये सारे इंडिकेशंस हैं. अगर आपको डेली इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो ये लक्षण कोरोना के नहीं है, ये लक्षण कोविड-19 के नहीं है, ये लक्षण आपके इम्पेशेंट होने के हैं. यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. फाइन, तो इससे हमको बचना है. Yes, sir. और अपने आप से पूछना है. ओके. थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं बिकॉज आई हैव समथिंग. हाँ, ओके, ये अच्छा चीज है. डेवलप अ कंसिस्टेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ. अब इसका जो पहला लाइन है वो अपने आप में एक पूरी की पूरी किताब है. टेक लाइफ वन डे एट अ टाइम. कौन समझाएगा मुझे? टेक लाइफ वन डे एट अ टाइम. Single sentence but very very meaningful. Take life one day at a time. लाइफ को इस तरह से जीना चाहिए कि जैसे अगर आज का दिन है तो यही हमारी पूरी लाइफ है, तो हम इस दिन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, ये चीज सोच के हमें कोई भी काम को करना चाहिए. वंडरफुल. आज मेरी नींद खुली, मुझे सोचना है कि आज का जो मेरे पास 16-17 घंटा है ये मेरी जिंदगी का शायद अंतिम दिन है. वी डोंट नो, हर पासिंग डे कल क्या होगा वी डोंट नो. सो आज की जो जिंदगी है, इस जिंदगी में मुझे आज क्या करना है. टेक लाइफ वन डे एट अ टाइम. बहुत ज्यादा 10 साल 12 साल पहले का बात का सोच करके या पास्ट में क्या बीत गया उसके बारे में सोच करके परेशान नहीं होना है. कंसिडर ईच डे एज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ. तभी जाकर के हम धीरे धीरे अपने गोल की तरफ हम बढ़ पाएंगे. डू नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक एंड फीलिंग्स. पास्ट में क्या गलतियां हमने की, कहां कहां हम फेल हो गए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए. भविष्य में क्या होगा सोचिए, प्लानिंग करके रखिए, बट बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है. हर दिन को जीना है एज अ फ्रेश डे. यही फिलॉसफी था स्टीव जॉब्स का भी. ब्रेक लार्जर गोल्स. जो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं उसको ब्रेक कीजिए कि भाई मेरा अगर गोल है 1 साल का तो मैं 1 महीने में क्या करूंगा, 1 हफ्ते में क्या होगा, 1 दिन में क्या होगा. तब जाकर के आप वहां तक पहुंच पाएंगे. तो अपने बड़े बड़े गोल्स को ब्रेक करना बहुत इजी है, उसको फॉलो करना, उसको चेक करना भी आसान है. अपनी प्लानिंग करना है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. और क्या है? एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव. अपने आप को, अब सपोज अगर मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई मुझे में कमी है तो है, मेरे में कमी है, मैं यहाँ पर कमजोर हूं, लेकिन अब मुझे इसी कमी के साथ, इसी खूबी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सो यू नीड टू बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड चीयर लीडर। वी ऑल हैव सीन चीयर लीडर्स इन IPL। उनका काम क्या होता है, जब भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो वो अपना वो पॉम पॉम लेकर के डांस करती हैं ताकि खिलाड़ियों में एक उत्साह आए। तो हमारा चीयर लीडर कौन है? हम खुद हैं। आपको जहां लगा कि आपने कोई अच्छा काम किया है, अपने रूम में जाइए, रूम को लॉक कीजिए, गाना बजाइए और डांस कीजिए। दैट्स इट। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। लव योरसेल्फ एज यू लव अदर्स। एक अच्छा आदमी वो है जो अपने आप से बहुत प्यार करता है। उसको मालूम है कि नहीं, मेरा जन्म किसी खास पर्पस के लिए हुआ है और वो पर्पस तब तक अचीव नहीं होगा जब तक मैं अपने आप को पसंद नहीं करूंगा, अपने आप को मोटिवेट नहीं करूंगा। अपने फियर्स को कन्फ्रंट करना है, अपने डर का सामना करना है। हम सबके पास चैलेंजेस है, हम सबके पास लाइफ में प्रॉब्लम्स है, डर है, उसका सामना भी हमें खुद ही करना है। राइट? वेक अप टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो लाइफ की सच्चाई है उसको आप समझिए। हर आदमी की जिंदगी में स्ट्रगल है, कमजोरी है, सेटबैक है। तो आई विल टेल यू एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बताता हूं आपको कि लास्ट ईयर वाज अ फेलियर फॉर मी आल्सो। सारे स्कूल्स कॉलेज बंद थे, मैंने वर्कशॉप नहीं किया, जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेस किया, जो थोड़ी बहुत कमाई हुई, दैट्स इट, फिनिश्ड। आई वाज सो हैप्पी कि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। फरवरी मार्च में अगेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर 21-22, वापस स्कूल से बात करना, वर्कशॉप फाइनलाइज करना। सो आई वेंट टू सो मेनी स्कूल्स इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। मैंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया था, कौन कौन से स्कूल में जाऊंगा, कब कहाँ वर्कशॉप होगा। 3rd of April आई वॉज ट्रेवलिंग टू कानपुर। 5 तारीख को मुझे वापस आने का था मुजफ्फरपुर, एंड 6th of April आई वॉज हैविंग माई फर्स्ट वर्कशॉप एट अ स्कूल एट बोचहा। मेरा पहला वर्कशॉप था 6 अप्रैल को। 3 तारीख के शाम को आई वॉज इन ट्रेन एंड आई केम टू नो ऑल स्कूल्स एंड कॉलेज आर क्लोज्ड। वापस समझ में आ गया कि वापस जो है ये अगला हफ्ता कुछ भी कमाई नहीं होने वाली है। जब तक लौट करके आया तो और क्लियर हो गया कि भाई अब तो स्कूल नहीं खुलने वाला है। कंप्लीट नाउ, एज ऑफ नाउ, आज 17 अप्रैल है और मुझे कोई भी स्कूल खुलता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, वी डोंट नो कब स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे। क्या करेंगे अब? वापस जो लास्ट ईयर हुआ था, इट इज गेटिंग रिपीटेड। फाइन, एंड यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली, तो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे, सर पीट लेंगे? नहीं। अगेन आपको सोचना है कि भाई जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में है वो सबके साथ में है। कोरोना सिर्फ मेरे घर में तो नहीं आया है, मेरे समाज में नहीं है, हर जगह है। तो अब इसमें मेरे पास क्या एक्सपर्टीज है, मेरे पास क्या क्षमताएं हैं और मैं क्या कर सकता हूं, वहां से अपनी लाइफ को आगे लेकर के बढ़ना है। सो लाइफ में चैलेंजेस तो है और इस लाइफ की जर्नी को पूरा करने में पूरा लाइफ लगता है। द 3rd सेंटेंस, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू कंप्लीट दिस जर्नी। इस जर्नी को पूरा करने में, इसको कंप्लीट करने में एक पूरा जिंदगी लग जाता है। ओके, तो अब ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, कि मोडिफाई योरसेल्फ, और अपने अपने भगवान जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, जो आपके ईश्वर हैं, उनको अपने जर्नी का पार्ट बनाइए। उससे क्या होगा, आपके लिए लाइफ को जीना जो है वो आसान हो जाएगा। अब ये जितने कोटेशंस हैं सब एक से एक खतरनाक हैं। परसिवरेंस इज द हार्ड वर्क यू डू आफ्टर यू गेट टायर्ड ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क यू ऑलरेडी डिड। आपने बहुत हार्ड वर्क किया सुबह से लेकर के शाम तक, वो सारे हार्ड वर्क करने के बाद, थकने के बाद जो आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हो, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। यानी कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक अपनी क्लासेस ले रहा हूं और रात को 8 बजे कोई कॉल करता है कि सर आपसे बात करनी है आधे घंटे के लिए, और मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है कॉल करो, आई विल टॉक। तो दैट इज हार्ड वर्क, कि आप थकने के बाद भी अपने काम के प्रति आप लगे हुए हैं। फॉल 7 times, स्टैंड अप 8। 7 बार गिरिए, 8वीं बार खड़े हो जाइए। दैट इज परसिस्टेंस।
right? So patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish. इसके आगे टिकना किसी के बस की बात नहीं है. Fine. Perseverance is not a long race. It is many short races, one after another. हम अगर अपने हर दिन को ढंग से जीते चले गए तो ऑटोमेटिकली हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे. Don't give up. In the end, you will feel so good and be so proud of yourself for not giving up. अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे. राइट? ये आर्यन के लिए भी है. आर्यन, so once your company will become excellent one, established one, you will feel proud of yourself. Right? Yes sir. So are you persevering? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि 24 घंटे में कितना घंटा आप, पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, कितने घंटे आप अपने ड्रीम के लिए दे रहे हैं. आप अपने ड्रीम के लिए कितने घंटे दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो आर यू परसिवरिंग, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स इट. ये था हमारा परसिस्टेंस. सो वी हैव स्टिल सम 4-5 मिनट्स. इफ एनीवन इज विलिंग टू टेल मी कि उसका क्या ड्रीम है और कैसे वो उसको परस्यू कर रहा है, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. कितने घंटे आप अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं? आर्यन, टेल मी. सर जैसे कि मेरा ड्रीम है कमर्शियल पायलट बनना. ओके. बट उसकी फीस सर अबाउट 1.2 करोड़ सर, जो मेरे बजट के बाहर है. ठीक है. तो मैं एक होटल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. जो उसका रेस है, मैं एक होटेलियर बन के एक एयरलाइन इंडस्ट्री में घुसूंगा, ऑन बोर्ड शेफ मतलब. और जब मैं एक एयरलाइन में शेफ हूँ, उसके बाद कंपनी 2-3 साल बिहेवियर देख के एक प्रमोशनल देती है कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं कि नहीं, तो कंपनी मेरे को 1 करोड़ स्पॉन्सर करेगी और बाद में मेरे सैलरी से डिडक्ट करेगी. तो उस टाइम मेरे को ये डर नहीं होगा बैंक लोन का. लाइक मैं बैंक लोन लेके चला जाऊँ और जॉब न लगा तो फिर बैंक लोन मेरे को देना होगा. ग्रेट ग्रेट. तो मैं इस लाइन से अपने ड्रीम को पूरा कर रहा हूँ. और आप लोगों को बता दूं कि जो ये आर्यन जो अपने कंपनी जो उसने खड़ा किया है, रेमिज इंडिया, उसने अपने पिताजी से एक नया पैसा नहीं लिया है, ना उसने मुझसे कुछ सपोर्ट मांगा है. उसने खुद से पैसे का इंतजाम किया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. सर ये अभी मेरे फैमिली में नहीं पता है. इसके पापा को मालूम भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है. एंड व्हाट ही इज टेलिंग कि आई विल वेट फॉर द डे व्हेन माय फादर विल कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द मार्केट. उनको मार्केट से सुनने को मिले कि आपके बेटे ने एक कंपनी बनाई है और वो डिस्काउंट कार्ड उसने लॉन्च किया है एंड इट्स गोइंग वेल. फैंटास्टिक. एनीबॉडी एल्स? आपका ड्रीम आप कैसे चेज कर रहे हैं? योर स्टोरी. नहीं, और किसी के पास स्टोरी नहीं है? नहीं, और किसी के पास लगता है अभी फिलहाल स्टोरी की कमी है. एक कहावत है कि हमें अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल करना चाहिए कि अपने आने वाली पीढ़ी को एग्जाम्पल देने के लिए किसी और का सहारा ना लेना पड़े. समझ में आया आपको? इतना संघर्ष कीजिए कि आपके पास इतने एग्जाम्पल्स हों अपने अगले जनरेशन को देने के लिए. तो फाइन, यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं. I will wait for all of you posting on any social media anywhere. आपको कहीं पर पोस्ट करना है, पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे साथ में कि आपका ड्रीम क्या है और आप कैसे उसको चेज कर रहे हैं. Your story of persistence, perseverance and patience. I will wait. If you want to discuss with me, you don't want to write, take time from me and talk to me. I will be so happy to know your struggle and your chase towards your dreams. Fine. That's it. Thank you very much for being with me. We will again catch up for the next session of Body, Mind, Soul. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye to you. Thank you, sir. Bye-bye. Okay, sir. Have a good day, sir. Good day, Shagufa. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, bye, bye.